Hi, sir. Good to see you. Good to see you. Thank you for Welcome. inviting us, sir. Welcome. So recently जो SCO हुआ है तो अभी पूरी उसकी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ में जैसे 1940s 1950s में चर्चा हुआ करती थी कि हु लॉस्ट चाइना, तो एक बिगर क्वेश्चन सभी स्क्रीन पे ये है कि हु लॉस्ट इंडिया। तो एक बिगर पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे देखते हैं? चीन में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 25वां मीटिंग हुई, समिट, शिखर सम्मेलन, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये, क्योंकि उन्होंने पहले एक स्पेक्टाकुलर तरीके से उसको मनाया। सेकेंडली 24 लीडर्स को उन्होंने बुलाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और सारे जो दूसरा देशों को भी। तीसरा चीज़ उन्होंने हाईटेक तरीके से उनका बनाया था, जो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस के फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा कि रोबोट्स को लगाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें ये भी उन्होंने इस्तेमाल किया, और कुछ 30,000 मीडिया पर्सन्स को उन्होंने बुलाया, और उसके बाद जो थिएनचिन मीटिंग के बाद अगस्त 31 तारीख से सितंबर 1 तारीख तक ये शिखर सम्मेलन हुई। उसके बाद 3 तारीख को, सितंबर 3 तारीख को पेचिंग में, थिएनचिन और पेचिंग के बीच में कुछ 1.5 घंटा का रास्ता है, और कुछ 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें। तो पेचिंग मिलिट्री परेड हुई थी, जिसमें उन्होंने करीब 50 नया तकनीके के जो हथियार उन्होंने डिस्प्ले किया, जिसमें DF-5C, तुंगफांग 5C एक ICBM है। ये कहीं भी दुनिया में कहीं भी अटैक हमला कर सकते हैं उससे, परमाणु से, और कई बहुत सारे हथियार उन्होंने डिस्प्ले किया। Okay, you can also speak in English, sir. English for English. So they have displayed a number of weapon systems which are quite spectacular in nature. These are very offensive. These are power projection forces, which means basically they can take the war into any country. Okay. And so they can resolve the problems by military means. Even though President Xi Jinping said that he wants peace, but the display suggests that they wanted a kind of coercive diplomacy. Okay. So this is quite a big event. पहले उन्होंने 2015 में एक मिलिट्री परेड वहाँ पे किया पेचिंग में, मैंने उसमें गया था। अच्छा। और अभी 2025 में ये हुई, अभी सितंबर में। तो these two events, Shanghai Cooperation Organization as well as the Beijing military parade, these are very wide in nature. Okay. And so the people who have to notice this have noticed. For example, the United States President Donald Trump said that he's watching. He said, I am watching the parade and other events that happened, especially the photo ops of President Putin, Prime Minister Modi and President Xi Jinping. इससे थोड़ा सा हिल गया अमेरिका ने। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि whether India has been marginalized in the whole process, I do not think that is the case. India is the 4th largest economy in the world. Even though it is now seized with 50% tariffs from the United States, it is still a major economy in the world, 3rd largest military force in the world, and its soft power is also very high.
it is the second or third largest foreign direct investment destination. It is also in the space arena, it has become a major power. And in the Indian Ocean, it has a very big place. No other country has that kind of strategic position in Okay. the Indian Ocean. Okay. India is the largest populated country in the world. Yeah. उससे ताकत बहुत मिलती है. Hmm. And demographically, average India is about 27 years old. Hmm. So this is what drives the economy, which is important. Hmm. It also can drive the military, but it drives the soft power. It drives the culture, educational institutions, and what we generally call as soft power. Oh. So I don't think India is marginalized. On the other hand, the Prime Minister's meetings with President Xi Jinping, Hmm. President Putin, and others, it indicates that we have overcome the problem of tariffs. Okay. So that is a very big signaling that Prime Minister Modi has indicated. Okay. Sir, once Lady Diana said that about Prince Charles and her marriage कि we were three in that marriage. So इसमें लोगों का ये भी कहना है कि this marriage is made by Donald Trump जिसमें पुतिन है प्रेसिडेंट, साथ साथ में शी जिनपिंग है और मोदी है. तो उसमें आप ट्रम्प के रोल को किस तरीके से देखते हैं? Trump did force the major countries who assembled in Tianjin. However, this is only temporary. Okay. This marriage is a marriage of convenience. Okay. The three leaders have a lot of differences. Those who participated in Tianjin and Beijing military parade, they have huge differences among them. Number one, unlike Trump and the NATO, there is no alliance in the Shanghai Cooperation Organization. These are not allies. Okay. These are not even friends. They have come together for regional security issues, which are basically on terrorism, on drug trafficking, on environmental issues, on economic security related matters, infrastructure projects. So they have come together for some purpose, not necessarily security related. In fact, the security angle is very weak in the Shanghai Cooperation Organization. On the other hand, United States today has 2,000 military bases abroad. United States is about $27 trillion. And if you put all the SCO states together, it is not $27 trillion. Yeah, obviously. So United States is still the largest. United States has the NATO and military alliances with Japan, Korea, Philippines, Singapore, Australia. So when we look at the, while Trump may have brought these leaders together, this is a temporary togetherness. Okay. But people are also saying, and Trump also said that we have lost India and Russia to the darkest and deepest China. How do you see that? That's true. Well, President Trump is known to make off-the-cuff remarks, but he Yes. also immediately corrects them. So, for example, he did say that he said he lost India, but within a few hours, he said we will improve relations with India. And Prime Minister Modi immediately reciprocated, saying that we will improve relations with the United States. Yes. From an Indian perspective, the importance of United States is very clear because they drive the high technology.
They drive the foreign direct investments. They direct the stock exchanges. They direct the markets. United States is a very big market, and many countries have exploited this situation, especially China. China's trade with the United States last year was about $580 billion. Yes. And out of which they earned something like $400 billion from the United States. Exactly. And India also earned $45 billion from the United States last year, and cumulatively about $270 billion. Because the US per capita income is very high, and so everybody exports to the United States. Mexicans, Canadians, Chinese, Indians, Japanese, Koreans, everybody else, ASEAN countries. So Trump realized that this is leading to a loss for the United States. Okay. And everybody is using the American market, and hence he started imposing tariffs. Okay. Now, for Prime Minister Modi, if he wants to take India to be the third largest economy by 2027, China is not allowing the Indian exports. Okay. China is not allowing their investors to come and invest in India. China is not allowing high-tech products to come to India. There is no collaboration. What China is doing is, it is using the Indian consumer base to sell its products, like your mobile phone, like your laptop, like your air conditioners, your fans, your electrical gadgets. So they are using markets everywhere else to sustain themselves and rise in the international system. But they are themselves not opening up their market. Okay. So for Prime Minister Modi, if he wants to take India to be the third largest economy by 2027, he has to explore markets. He has to see avenues where countries can invest in India. The foreign institutional investors in the Mumbai Stock Exchange, that is a barometer for the economic growth of any country. So also the Silicon Valley, which has the highest technology in human history, in the information and communication technologies, ICT. So Prime Minister Modi has to invite them and make India great again, as he told Trump during his visit to Washington, D.C. Okay. But sir, why Trump is so grumpy with Prime Minister and India? Who comes between them or their romance? I think 3-4 factors. One is that India did not allow the United States role to be formed up during the Operation Sindoor. Okay. Number one reason. But the most important reason is India did not endorse Trump for the Nobel Peace Prize. Oh my goodness. This has become an ego problem for the Trump administration, and this is one of the main reasons. Third is that they want to resolve the Ukrainian conflict. For this, they want to address the Russian president. There was a meeting between Putin and Trump in Alaska. They expected that Putin will resolve the Ukrainian conflict, and they gave about 90 days roughly for Putin to resolve this. But Putin is not doing anything in this regard. In fact, yesterday and day before, we saw the offensive in Ukraine by the Russian military in terms of drone attacks, missile attacks. So Trump is concerned that he will be losing his Nobel Peace Prize if he doesn't resolve the Ukrainian conflict. And so since he cannot control Russia, he is trying to
address a third party to the dispute by saying that India is importing oil from Russia and contributing to the Ukrainian conflict. So उन्होंने एक बहाना बना दिया कि भारत ने रूस से ऊर्जा इंपोर्ट कर रहे हैं और ये यूक्रेन के मदद कर रहे हैं जिससे यूक्रेन की मदद हो रही है वॉर में। हाँ, लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल 1.5 बिलियन डॉलर का यूरेनियम रूस से खरीद लिया और यूरोप ने कुछ 19 बिलियन डॉलर के एनर्जी या दूसरा प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स रूस से उन्होंने इंपोर्ट किया। यूरोप करीब 18 बिलियन डॉलर्स का यूक्रेन को मदद करती है, जो हथियार या जो भी सपोर्ट चाहिए वो यूक्रेन को, लेकिन वो कुल मिलाकर कुछ 20 बिलियन डॉलर के ईंधन के बारे में या दूसरे ऐसे चीज़ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कहते हैं वैसलीन या जो भी है, ये सारा उन्होंने इंपोर्ट किया। तो एक डबल स्टैंडर्ड है ये। फिर भी ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे कि पीटर नवोरो ने कहा या ट्रेजरी सेक्रेटरी बसान ने कहा कि भारत यूक्रेन के मदद नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन के जो युद्ध के बारे में अमेरिका को मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस को मदद कर रहे हैं, जो हम 60 बिलियन डॉलर के ऊर्जा हमने वहाँ से इंपोर्ट किया रूस से। लेकिन रूस हमें कुछ 35% का डिस्काउंट दे रही है। तो ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए, भारत के जो कंज्यूमर्स के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि ये सारे हम प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं बाहर में, और उन्होंने कुछ जात के बारे में भी उन्होंने बताया, ब्राह्मण्स आर मेकिंग मनी। अभी उनको भी ये पता लग गया है कि यहाँ ऐसे खेलना है। हाँ, ये वैसे ये गलत आर्गुमेंट है क्योंकि वो अपने जो नेटो के पार्टनर्स इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से, तो ये रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स नहीं। ओके सर, डू यू बिलीव और डू यू थिंक कि जो पार्लियामेंट का जो डोमेस्टिक प्रेशर जो था उसकी वजह से हमारे को चाइना के साथ जाना पड़ा या चाइना के साथ जाते हुए दिखना पड़ा? हम चीन के साथ टेम्पररीली गए थे जब थिएनचिन में शामिल हुए, क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि ट्रम्प हमारी टुकड़ों टुकड़ों में बेइज्जती कर रहा था बार बार। हाँ, वो उन्होंने कहा है कि ज़ीरो इकॉनमी, और दूसरा बार ये भी कहा है कि जैसे कि उनका जो एडवाइज़र्स ने कहा है कि भारत एक रूस का चेला है और वैसे कुछ इंसल्टिंग कमेंट्स है ये सारा। तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी हम वैसे हमने कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। Prime Minister Modi did not criticize the Trump administration, nor Dr. Jaishankar, the External Affairs Minister. We kept quiet. We kept the dignified quietness in relation to the United States, क्योंकि हमें पता है कि ये झगड़ा जो है वो शॉर्ट टर्म है। हम ये भी पता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स या इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स या मार्केट फिर भी अमेरिका के पास है। अगर आप राइज करना चाहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, चीन आपको मदद नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगा, कभी नहीं। क्योंकि वो क्यों आपको मदद करना चाहते हैं? आप उन गलवान में आप उनसे झगड़ा किया, या सीमा विवाद के दूसरा जगह में अरुणाचल प्रदेश में या तवांग में या सिक्किम में, या जैसे कि डोकलम इशू हुई 2017 में। सो चाइना इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द राइज ऑफ इंडिया।
when Indian strategic thinkers look around and see who will contribute to India's rise, they will immediately go to Japan. ओके क्योंकि वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के थिएनचिन के विजिट के पहले उन्होंने टोक्यो गया और वहाँ से कुछ 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ से लेके आया. दूसरा चीज़ जो शिनकानसेन हाई स्पीड रेलवे, जापान ने अभी उनका जो R&D फैसिलिटीज़ पूरा भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किया. ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है क्योंकि अभी हमारे पास अभी कोई हाई स्पीड रेलवे का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया. जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद का जो तैयारी हो रही है अभी, उसमें बहुत रुकावट है क्योंकि भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर एक नागरिक के पास ज़मीन है और वो ज़मीन कोई पब्लिक फैसिलिटी के लिए नहीं देना चाहते हैं. तो महाराष्ट्र में, गुजरात में वो उसका रुकावट आ गई क्योंकि लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाई. ओके और दूसरा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो लॉस हैं अभी, वो लॉस भी अभी हम उनका ट्वीक नहीं कर पाया, तो इसके वजह से भी उसका रुकावट आ गई. तो हम अगर चीन को देखें, चीन के पास कुछ 40,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेलवे हैं. बिल्कुल. मतलब आपका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तुरंत आप एक पोर्ट जगह से में दूसरी जगह पहुंचा पोर्ट में भिजवा सकते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ओके लेकिन हम पहले इंडिपेंडेंस से अभी तक हम पैसेंजर ट्रैफिक के लिए हम एम्फसाइज कर रहे थे, फ्राइट वॉल्यूम को नहीं कर रहे थे. तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम है. ओके लेकिन अगर चीन का एक्सपोर्ट्स अगर देखें, चीन का 40% ऑफ देयर GDP इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. एग्जैक्टली. हमारा कुछ 20%, क्योंकि हम हाई स्पीड रेलवे या जो स्पीड से हम उनका पोर्ट तक पहुंचा नहीं पाया. ओके सर, रिसेंटली ऑन सितंबर 4 पाकिस्तान के साथ उन्होंने दोबारा एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग करी चाइना ने, और चाइना और पाकिस्तान की तो एक रॉक सॉलिड रिलेशनशिप है जिसको हम उस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते. तो फिर इस इन्फ्लुएंस में आप कैसे देखते हैं कि भाई चाइना पाकिस्तान के साथ इतना क्लोज है, और जैसे आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी तो वो भी जो 10% से 0.3% पे आ गए हैं चाइना के टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स. तो पैरेलली चाइना पाकिस्तान के साथ भी बहुत मजबूत तरीके से है, जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, और वो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत रिलाय करता है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में. सितंबर 1 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी थिएनचिन में थे और ये 4 तारीख को उनके बीच में एक समझौता हुई. उन्होंने कह रहे हैं कि 2030 तक ये सारे अभी इंटेंसिफाई होगा. जॉइंट पार्टनरशिप, जॉइंट कोऑपरेशन, उसमें एक एग्रीमेंट हुई शाहबाज नवाज और शी जिनपिंग के बीच में. वो जॉइंट स्टेटमेंट में जॉइंट एक्शन प्लान उसको कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम वी आर डीपनिंग द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन. ओके. दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि हम इसके CPEC प्रोजेक्ट्स को मजबूत करना चाहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिसमें अभी तक कुल मिलाकर $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुई थी चीन से. और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो काउंटर टेररिज्म के बारे में दोनों देश के बीच में समझौता बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक भारत में एक चीनी का भी घायल नहीं हुआ टेररिज्म पे.
वहाँ 30 मार दी उन्होंने वहाँ पे कुछ कुल मिलाकर 36 लोगों का चीनी जो नागरिक लोगों के मृत्यु हो गई। बलूचिस्तान में खोरासान प्रोविंस में दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में या कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में। तो चीन ने कह रहे हैं कि इसमें हम काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। ओके। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सेलेक्टिव काउंटर टेररिज्म है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स होना नहीं चाहिए। उनका जो 50 मिनट के डिस्कशन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स होना नहीं चाहिए टेररिज्म के बारे में। चीन का रवैया यह है कि as long as the Pakistan-based terrorists are not attacking the Chinese citizens, and as long as they are not supporting the Uyghurs in Xinjiang, the Chinese are supporting Pakistan in all international and regional initiatives, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अगर भारत के खिलाफ कोई काम करता है, चीन कहते हैं कि ये आपका बीच में मामला है, ये दिस इज बिटवीन यू, आप खुद सुलझाओ इसको, आप खुद समझाओ इसको। बल्कि उन्होंने ये भी कहता है कि हम पाकिस्तान को मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कमिटी कॉल्ड 1267 कमिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमिटी है जिसको अलकायदा कमेटी कहते हैं। अलकायदा कमेटी। और जब ऑपरेशन जब पहलगांव इंसिडेंट हुई, टेरर अटैक्स हुई अप्रैल 22 तारीख को, चीन के जो एम्बेसडर ली चांगची है, उन्होंने जो 1267 कमेटी में द रेसिस्टेंस फ्रंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया 2 बार, और तीसरा बार उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया पहलगांव अटैक्स के। मतलब उसके बीच में कुछ हुआ होगा कि पाकिस्तान और जो आतंकवाद के बीच में, तो तीसरा दफ़ा उन्होंने कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं उसके लिए पहलगांव के, लेकिन 2 बार उन्होंने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF उनका नाम हटा दिया था 1267 कमेटी में, और बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने लगाया उस ड्राफ्ट में। अभी जो SCO समिट मीटिंग हुई थिएनचिन में, पहलगांव अटैक्स को कंडेम किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुई जो रेलवे उन्होंने हाईजैक किया BLA ने बलूच लिबरेशन आर्मी में, तो उसका भी कंडेम किया उन्होंने। और दूसरा जो चीन के खिलाफ जो आतंकवाद है पाकिस्तान में, उनका भी कंडेमनेशन हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन एक डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं ये आतंकवाद के खिलाफ के जो कैंपेन में। ओके। सो चाइना इज सेइंग दैट वी won't interfere with the Pakistani terrorists if they are targeting India. But we want the Pakistani-based terrorists not to support the Uyghurs in Xinjiang. Okay. And he also said that we are not rivals, we are partners. Can we trust C? हम ट्रस्ट कर सकते हैं चीन के, अगर वो सीमा विवाद के कुछ स्टेबिलिटी लेके आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिजॉल्व करो, लेकिन अगर चीन आज 70,000 सैनिकों को मोहराते हैं सीमा के बगल में, तो आप उनसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये भी है। If the Chinese have deployed 70,000 troops on the borders, how can you believe in them? क्योंकि
अक्टूबर 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ममल्लापुरम में शामिल हुआ, अक्टूबर 2019 में उसी समय खशगढ़ से 2 ब्रिगेड्स डेप्संग बल्ज में इंट्रूजन हुई और उन्होंने कब्जा कर लिया डेप्संग प्लेन्स को। और हमारा जो सैनिकों का जो पेट्रोलिंग उनको रोक दिया। ओके। तो आप उनसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? और मैसेज बिल्कुल क्लियर था उनकी तरफ से। हाँ, क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग ने कह रहे हैं कि महाबलीपुरम में, ममल्लापुरम में कि हम ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन वो सीएमसी के चेयरमैन भी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। तो अक्टूबर में ही उस साल अक्टूबर में ही कशगढ़ से 2 ब्रिगेड मतलब 10,000 सोल्जर्स, 5,000 एक ब्रिगेड में होते हैं, 10,000 सोल्जर्स उन्होंने लद्दाख में पहुंचाया। ओके सर, आप शी जिनपिंग के जो ये इन्फ्लुएंस को, जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? शी जिनपिंग के जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, एसओसी के बाद? 2-3 चीज़ इसके बारे में। शी जिनपिंग डोमेस्टिक इश्यूज पे बहुत अपोजिशन आ रहे हैं, क्योंकि अभी अगस्त में एक पेइताई मीटिंग हुई वहाँ पे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर लीडर्स या इम्पोर्टेंट लीडर्स वो वहाँ पे जाते हैं। पेइताई हमारा गोवा जैसा। अच्छा। स्विमिंग पूल्स बहुत सारे हैं, बीचेस हैं। Have you been there? I've been there. Okay. I saw the Communist Party headquarters in that. So they go for swimming. चीन में वैसे बहुत ह्यूमिडिटी है, जो 35 डिग्रीज मैक्सिमम, 34 डिग्रीज मिनिमम। बस तो सेम ही हो गए तो। हाँ, ऑलमोस्ट सेम। एंड बहुत खुंदक आती है उस समय। तो लोग ये सोचते हैं कि पूरा जाके कूदें स्विमिंग पूल में गर्मी से। एंड दे हार्डली वेयर एनी ड्रेसेस समर में, इतना ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है। तो पेइताई में जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चांगयांग, जनरल चांगयांग, उन्होंने शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज किया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो डोमेस्टिकली उनका पोजीशन अभी जटिल हो रहा है। ओके। इंटरनेशनली जो एक स्पेक्टाकुलर मीटिंग्स हुई थिएनचिन और पेचिंग में, लेकिन दूसरा देशों में कोविड के वजह से, ये जो महामारी आई थी 3-4 साल पहले, उसकी वजह से कुछ 80% का नेगेटिव फीलिंग है दुनिया भर चीन के खिलाफ, क्योंकि इससे कुल मिलाकर 60 लाख लोगों का मृत्यु हुई ऑन रिकॉर्ड। उसके अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना। हाँ, जो ये तो WHO के जो आंकड़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थिंक्स दैट देयर आर अबाउट 6 मिलियन पीपल हु पास्ड अवे all over the world, so including 5 lakh in India. ये भी सरकारी फिगर है, तो शायद उसका we cannot trust that 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। 5 करोड़ तो एक स्टेट में, क्योंकि हम ये भी सुना है कि गंगा में बहुत सारा डेड बॉडीज को ऐसे छोड़ दिया। तो 80% बहुत सारे ये जो प्यू पब्लिक ओपिनियन पोल्स में 80% of the people today oppose China because of COVID-19 virus, which came from the Wuhan region. So there is a negative feeling. अभी चीन में ये सारे बहुत बड़ा मीटिंग्स अरेंज करके
वो एक पॉजिटिव इमेज लेना चाहते हैं, लेकिन जो महामारी से बहुत सारे लोगों का इसमें नेगेटिव फीलिंग्स है। दूसरा चीज़, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड है और कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आपने पहले पूछा है कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का कभी भी एडवर्ड स्नोडन या जूलियन असांज नहीं होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पास। वो कंप्लीटली ओपेक सिस्टम है उनका। आप इस 100 साल में या कम से कम 70 साल में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, अभी तक कोई डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं मिली किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। जो विजिल ब्लोवर्स हैं या जो भी है, उनको सबको अरेस्ट किया या मरवा दिया। तो एक दूसरा चीज़ ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है, तो इसका वजह से एक ग्लोबली एक नेगेटिव फीलिंग है। ओके। और उन्होंने ये चाहते हैं कि उसको रिड्यूस करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वैसे जो इनिशिएटिव्स जिसमें $1 ट्रिलियन के उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया, जैसे कि सड़क बनाया, रेलवे बनाया, एनर्जी पाइपलाइन बनाया, फाइबर ऑप्टिक्स बनाया, हुआवे के 5G नेटवर्क्स बनाया, या पोर्ट्स बनाया, जैसे कि हम्बनतोटा पोर्ट श्रीलंका में, ग्वादार पोर्ट या दूसरा जो पोर्ट्स ग्लोबली। तो दे थिंक दैट बाय lending money to other countries they will have a positive image. Okay. लेकिन उसमें एक नेगेटिव फीलिंग भी आ गया, क्योंकि जब श्रीलंका ने when Sri Lanka didn't had the money to repay back the Chinese loans, China took Hambantota for 99-year lease. Yeah. तो अपना सॉवरेंटी उनका चला गया, अपना जगह पर ही, अपने इलाका पे भी उनका 99 इयर्स के लिए उन्होंने लीज ले लिया। वैसे ही मुंबासा पोर्ट के वो भी उन्होंने पे कर नहीं पाया। They were not able to pay back the money that China invested in the railway and the port construction, maritime port. Chinese Foreign Ministry spokeswoman ने कहा है कि वो पोर्ट को हम ले लेंगे, जैसे कि हम्बनतोटा को लिया उन्होंने। लेकिन some good sense prevailed in Beijing. They did not take. Otherwise, African opinion could have been very negative towards China. Okay. Actually, today African opinion is positive towards China because they are investing a lot in the infrastructure projects. So in Africa, in Pakistan, in Laos, Cambodia, China has a positive image. Globally, it has a negative image due to COVID, due to dead diplomacy of BRI, due to the Communist Party lack of transparency, and high-handedness. जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं, वुल्फ वॉरियर, एक मूवी आई थी वुल्फ वॉरियर, उनका सीक्वल भी आई थी 1, 2, 3। तो ये सिनेमा के आखिर में उन्होंने कहता है कि अगर इफ एनी चाइनीज इज स्टक इन ए डिजास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स, द चाइनीज स्टेट विल रेस्क्यू हिम और हर, and the Chinese citizens should also defend the motherland. तो एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी उन्होंने बनाया, और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन्स गवर्नमेंट से सारे दूसरा देशों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इससे भी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हुई बाहर में। तो आपका प्रश्न ये था कि वो पॉपुलर हो रहे हैं, अफ्रीका में पॉपुलर हो रहे हैं, साउथ अमेरिका में भी है, और कुछ देशों जैसे कि आसियान के, लाओस, कंबोडिया में, पाकिस्तान में वो पॉपुलर हैं वैसे ही।
ओके, सो लेट्स कम टू यूनाइटेड स्टेट्स सर। अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं। स्टार्टिंग अगर हम देखें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन की, तो 60s में काफ़ी अच्छे बनते हैं और फिर 71 में गड़बड़ होती है, फिर 80s 90s में फिर बिल क्लिंटन 2000 में यहाँ पे आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलते हैं, और फिर एक वाटर सेड मोमेंट आता है उसमें जब प्रेसिडेंट बुश और मनमोहन सिंह वो एटम न्यूक्लियर डील करते हैं, और फिर साथ ही साथ में कंटिन्यूअसली उस वक्त ये भी कहा जाता है कि हम इंडिया को एक ग्रेटर कंट्री के रूप में, एक पावरफुल कंट्री के रूप में देखते हैं। तब से लेके अब तक फिर एक ऐसा मोमेंट आता है राइट नाउ जब टैरिफ्स लगते हैं, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक पेनल्टीज नहीं, ये पॉलिटिकल सिग्नल्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो हैबिचुअल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें वो क्विक चेंज करते हैं और क्विक शिफ्ट होता है उनका, तो इस पूरे से सिनारियो को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी जो चेंज हो रही है इंडिया के टुवर्ड्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या ये क्वाड समिट में ये ठीक हो पाएगा, या प्राइम मिनिस्टर यूएनजीए में जाएंगे तब उनके बीच में कोई मुलाकात हो सकती है, या फिर ये और भी ज़्यादा वर्सन होंगे? I have no expertise on the American politics or foreign policy, but I'm also tempted to get involved in the discussion. You said it rightly. There are vagaries in the U.S. administrative policies. There is a beauty in the American system. Every new president starts afresh. Okay. When he takes over after the elections, they have a zero assessment. Zero assessment means that I will start afresh from today. January जो उन्होंने शपथ लेता है, उस समय से they take a different view. The previous president is all bakwas, and I will do the needful to keep the promises. You may have seen President Trump criticizing Biden 100 times probably in one day. Yes, even more than that. Even probably more than that. So this is it is their system, which is good in the sense that if the previous president really did something bad, then the new president will bring in the better things, best things, possibly in the reassessment. So this is the beauty of the US political system. However, we have seen there is some degradation in the standards, in the language used, in the Because they are more humane these days. We do not know, but there is some degradation. जैसे कि कैपिटल हिल में वो सारा जाके जुलूस किया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब शपथ ले रही थी उस समय, या the other events that happened. So this doesn't behove well for the US democracy. But in any case, it is their internal matter. How they behave is their problem. As far as India is concerned, you rightly mentioned about the twists and changes in the US policies towards India. After the 1972 peaceful nuclear explosion, the Americans have put sanctions on India. And then, of course, they changed the view in 2005. Condoleezza Rice, the then Secretary of State, went to Sophia University in Tokyo. Yes. She said in February 2025 that we want to help India to become a major power in the global system. And she also, because she was saying this in Tokyo, who is a military ally of the United States. So they were sending a signal to Japan that Japan does not have strategic depth in countering the Chinese. Okay. If the Chinese launch a ballistic missile and a few nuclear weapons, Japan will be totally destroyed. 127 million populated Japan will be totally destroyed.
But India has 1.4 billion people. Even if you use all your nuclear weapons, 450 nuclear weapons, we still have some people living in the caves, living in underground. This is what Mao said. माओ से तुंग ने कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करते हैं परमाणु से 30 करोड़ लोग का घायल हो जाएगा, लेकिन उस समय 60 करोड़ का लोग थे उसके पास, 60 करोड़ पॉपुलेशन थी. हाँ, 600 million people. He said if 300 million people are killed, the rest of 300 million people will come out of the caves. So to paraphrase Mao Zedong, India has strategic depth. Japan does not have strategic depth. उन्होंने ये भी कहा है कि India is in the Indian Ocean with so much of strategic depth. हिंदू महासागर में इतना उसका डेप्थ है. ये भी कहा है कि इंडियन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग. अभी कुछ 40 करोड़ का मिडिल क्लास है भारत में, और ये सारे जो कपड़े खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं या किताब खरीदते हैं या ऑटोमोबाइल के, मिडिल क्लास किताब नहीं खरीदते सर. क्लास के हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन इन इंडिया. This is very significant. Geographically well located. और S&T में ज़्यादा significant achievements हैं, जैसे कि moon landing, Mars mission. Okay. So there is a technological base created. So Condoleezza Rice ने कहा है कि we should help India to grow to become the major power in 21st century. और एक बाईपार्टीजन कंसेंसस बनी थी ट्रम्प आने से पहले. ट्रम्प के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लागू थी, जैसे कि हाउडी मोडी मीटिंग में या अहमदाबाद उनका जो विजिट हुई थी महामारी के समय पे, या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारा हमें कर लिया उनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी. तो उन्होंने ये सारा रिवर्स किया अभी ये 3-4 महीने में. तो वन प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू अंडरस्टैंड इज द न्यू प्रेसिडेंट कैन चेंज substantially the policies followed by the previous administrations, which results in a lot of problems for the recipient country. But sir, that president is a very good friend of our prime minister. It's true. These are based sorry to interrupt. Apart from that, as you mentioned, Condoleezza Rice, she's really a cunning lady. And if she's true, then why they are inviting this General Munir for the dinner? नहीं, ये 2005 का समय बता रहा था, कॉन्डोलीजा राइस के जो समय पे. अभी जो जनरल मुनीर को बुलाया था, ये दूसरा खेल था. ये they wanted Pakistan to help the United States to enter into Central Asia. They want Pakistan to help Israel to counter Iran. They want Pakistan to counter China. And they also want Pakistan to counter India. तो उनका मकसद अलग था जब उनको मुनीर को बुलाया. और एक मकसद ये था कि ट्रम्प के जो फैमिली मेंबर्स क्रिप्टो करेंसी में शामिल हैं, और द फैमिली ऑफ ट्रम्प, according to Jake Sullivan, the former NSA, they received $5 billion. Okay. तो ये भी अपना फ़ायदा, पर्सनल फ़ायदा शायद उन्होंने उठाया. तो जो भी है रीजंस, मुनीर के जो उन्होंने बुलाया, ये this is because of the contingencies. I don't think this is a long-term policy. Okay. So as I said, 4-5 reasons must have been there. But these are all short-term reasons. Okay. So I do not think the US can go along with Pakistan, क्योंकि वहीं से 9/11 पैदा हुई.
वहीं से ग्लोबल टेररिज्म पैदा हुई. In any case, Pakistan does not have major resources to become a global power. Okay. So this is a short-term policy adopted towards Pakistan. बहुत सारे ऐसे जो और पाकिस्तान भी there is the first country to have nominated Trump for Nobel Prize. दूसरा कोई देश उनका नॉमिनेट कर नहीं पाया अभी तक. They both are great, sir. Donald Trump and Pakistan in a way. वही कर सकते हैं ऐसी चीज. Because Trump is very egoistic, so these add up to the. To his megalomaniac personality. You never know, he may get even Nobel Prize. Oh, okay. But sir, as people say in this foreign policy, there are no permanent friends but permanent interests. So देखते हैं चेंज होता है. He also want to ask sir. Like I have questions on international relations, not particularly about India-China since you have covered most of it. So one is about like during last month, Mr. Putin and President Trump, they met in Alaska and there was some hope of ceasefire between Ukraine and Russia. And then we see the SCO summit where Putin and Xi Jinping and Modi, they are all together. And also like at one point of time, like President Trump says that Modi is terrific friend of him and then he imposes tariff on it. So do you think there is any consistency in Trump's foreign policy and like what kind of foreign policy is United States practicing? First, Russia. You mentioned about Russia. Russia went to conflict with Ukraine on 2-3 conditions. One is they mentioned this as a special military operation, not a war, not an explicit war. Second, they want to have denazification of Ukraine. वो लोग समझते हैं कि यूक्रेन में पूरा नाजीज हैं और ये जो स्किन हेड्स जो कहते हैं मैदान में जो कीव के मैदान में वो सारे गैंगस्टर्स हैं और ये रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ते हैं. तो दे वांट डीनाzification ऑफ यूक्रेन. Oh my God. Denazification is like counter-terrorism. Okay. आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ना चाहते हैं उस माउंटेन्स में, पकड़ नहीं पाए. वो सिर्फ अबोताबाद में पकड़ा गया क्योंकि वो भी एक CIA ऑपरेशन थी. And it took 5 or 6 years for them to capture him. More than that. More than that. More than that. So denazification is like this: to find a needle in the haystack. So it is very difficult to get that objective fulfilled. Third objective ये था कि NATO expansion को बंद करना है. These 3 objectives are unlikely to be met in Ukraine. And so far, it is estimated 1 lakh Russians were killed, 4 lakh Ukrainians were killed. Oh my God. And 8 million Ukrainians, mainly women and children, migrated to Poland, Romania, Hungary, Bulgaria, and other European countries. So this is a prolonged conflict, and there are no easy solutions. इसमें दूसरा एक खेल था कि डोनबास में वगैरह रेयर अर्थ मेटल्स का इंफॉर्मेशन आई और ट्रम्प के आंख उसमें आ गया, लग गया. रेयर अर्थ मेटल्स जो जहाँ पे भी रेयर अर्थ मेटल्स हो उसका नज़र लगता है वहाँ पे. ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये आपके ऑटोमोबाइल और के इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके डिफेंस इंडस्ट्री, ओके, सारे रेयर अर्थ मेटल्स पे डिपेंड हैं. सेमीकंडक्टर्स वगैरह अलास्का में भी हैं कितने. और 67% ऑफ दीज आर प्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड चाइना डजंट वांट टू कोऑपरेट विद द अमेरिकन्स. दिस इज व्हाई दे आर लुकिंग फॉर रेयर अर्थ मेटल्स एवरीवेयर. सो ट्रम्प्स main objective towards Ukraine is not necessarily conflict reduction, but to find those rare earth metals. Okay.
बलूचिस्तान में भी वही रीज़न था जो मुनीर के साथ उन्होंने कर रहे हैं, क्योंकि पहले बलूचिस्तान को CIA ने मदद किया, बलूच लिबरेशन आर्मी को। अभी वो सारा रेयर अर्थ मेटल्स वहाँ से लेना चाहते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी कोई अपना देश के जो रिसोर्सेज किसी को नहीं देना चाहते हैं। सो दैट इज़ द conflict internally between them. So on Russia, we don't see these three objectives to be met. Alaska meeting or no Alaska meeting, these are not really happening. Because the European countries are banking on the Ukrainian conflict. They want Ukraine not to go the Russian way, and they don't think that this will be stalled. अभी जर्मनी ने $200 बिलियन के डिफेंस बजट बनाए उन्होंने। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था $82 बिलियन। जर्मनी अभी $200 बिलियन का उन्होंने बनाया। चीन का कुछ $240 बिलियन का है। ओह माय गॉड। तो आप देख लीजिए, जर्मनी अभी उबल के आ रहे हैं ये सारे जो मिलिट्री के तकनीकी में और नया ऑपरेशंस में। सो दिस इज़ ए न्यू सिचुएशन। नाउ एज फार एज द US is concerned on Russia, Trump is fixated on the Nobel Prize, and if the Ukrainian conflict is resolved, he has every chance of getting a Nobel Peace Prize. So दूसरा रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में भी उन्होंने फोकस कर रहे हैं। So is the United States consistent, or they have any? I think the US is consistent. Number one, every nation is exploiting the American market by using the WTO, globalization, and others. And in the election campaign, Trump said we will rectify this. So he imposed tariffs. And this is a national decision. If India doesn't like it, India can sell it to other countries. If China doesn't like the tariffs, if Canada, Mexico do not like the tariffs, they can export to other countries. Imposition of a tariff is a sovereign decision. Of course, it is contradictory in globalization. Contradictory to the most favored nation treatment, contradictory to the free trade area agreements, जैसे कि NAFTA है, North American Free Trade Area. So this is contradictory to their own agreements. So they have to explain why it is contradictory. But that is a different matter. The consistency is that we have lost in trade. Every country is using my market, so I will impose tariffs. So it's a genuine concern that everybody is using the American market, and we want to correct this asymmetric relationship, market relationship. So this is consistent. Tariff imposition of tariffs is consistent because MAGA movement में one of the main thing is we lost our industries to other countries. We now want to bring back these industries into Detroit, the Rust Belt, or Midwest, which is where much of the unemployment is. So it's a genuine concern of the Trump administration. MAGA movement, क्योंकि अंदर पूरा गोल है। अच्छा। They Republicans and Democrats combined, they implemented policies whereby American industries shifted abroad. आप जानते हैं 77,000 American companies are in China. Okay. And they don't want to go back to the United States because of high wage labor and positive policies implemented by Mexicans, Canadians, Chinese and even Indians. ट्रम्प ने कहा है कि टिम कुक को कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया इन द एप्पल आईफोन्स in Mangalore, in Chennai, in other places. But here the wage labor is less.
the wage labor in the United States is $80,000. Yeah. In India it is $4,000. तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता है भारत में, चीन में, मेक्सिको में, कनाडा में. So most of these industries shifted and they want these industries to come back to the United States. So that is a consistent logic they implemented from their own perspective. It is quite possible that we are exaggerating this, but from their own perspective, they want to make America great again. हम भी चाहते हैं, चीन भी चाहते हैं. चाइना rejuvenation बोलते हैं. MAGA and rejuvenation are not different. बट सर 50% टैरिफ ऑन इंडिया, जबकि 19% टैरिफ पाकिस्तान पे और 30% टैरिफ चाइना पे है. The United States has the right to impose any number of tariffs on any other country. वो कहते हैं कि हमारा देश में आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारा मार्केट, हम डिसाइड करते हैं कितना टैरिफ्स आपके ऊपर इम्पोज करना है. आप चिल्लाइए कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है. मेरा पड़ोसी के ऊपर आपने 19% किया, हमारे ऊपर 50% किया. ये आप जेलसी फील कर रहे हैं. The fact of the matter is they decide on how much. लेकिन इसमें भी आप कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि पहले तो आपने कहा है कि वी वांट टू मेक इंडिया एज अ मेजर पावर इन 21st सेंचुरी. दूसरा ये कह रहे हैं कि 50% टैरिफ, और ये 50% टैरिफ में 25% रिटेलिएटरी टैरिफ, क्योंकि आप रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं. बताओ. लेकिन आप भी इंपोर्ट कर रहे हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप एक्सप्लेन कीजिए, रैशनली एक्सप्लेन कीजिए आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं. $1.5 बिलियन ऑफ यूरेनियम. सो एक पत्रकार ट्रम्प से पूछा तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट नो. अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कि उनको पता नहीं था कि वो यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से. Great. Sir, you mentioned like the growing unrest against Xi Jinping's authority in China and opposition within the Communist Party also. But as far as I remember, like apart from Tiananmen Square massacre in 1989, there has not been a kind of resistance movement against the strong authoritarian state of China. So do you think is there any possibility of any protest and any that sort of resistant movement against Xi Jinping? चीन में प्रोटेस्ट बहुत अभी मुश्किल है. जैसे कि तिएननमेन स्क्वायर में 4 लाख लोगों का जुलूस निकला. 4 लाख. उसमें स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे, बुद्धिजीवी थे. वैसे स्केल में अभी नहीं होगा क्योंकि चीन में 70 करोड़ के CCTV लगे हुए हैं. आप JNU में आए, कभी किसी CCTV मिला आपको? नहीं, मैं तो अभी पूछ रहा था कि CCTV है क्या यहाँ पे. राजधानी दिल्ली में और भारत में नंबर 1 यूनिवर्सिटी JNU में CCTV नहीं दिखता है आपको. अच्छी बात है. चीन में हर एक जगह 1 मिनट में आपको कम से कम 7 बार स्नैप करते हैं. और ये फेशियल रिकग्निशन, अगर आप गुस्से में हैं तो उसका फीलिंग्स भी वो निकालते हैं. एंड दे हैव AI पावर्ड सिस्टम्स. अगर आप गुस्से में हैं तो आपको अंदर डाल देंगे. ओह माय गॉड. क्योंकि अगले 5 मिनट में आप किसी के ऊपर हमला करेंगे या किसी को पिटाई करेंगे या किसी, तो AI आपको बता रहे हैं कि ये 5 मिनट बाद में ये बंदा एग्रेसिव हो जाएंगे. The AI is alerting you because of the facial recognition. He is not happy. He or she is not happy. And so you have to go and capture this person. They alert like this. आपको आपके जानकारी में ये होना चाहिए. सिंचियांग में ये फेशियल रिकग्निशन कैमरास लगा हुआ है. तो वहाँ पे 10 लाख लोगों को अंदर डाल दिया. ओह माय गॉड. 10 लाख लोगों को अंदर डाल दिया.
डिटेंशन सेंटर्स में, कुछ 400 डिटेंशन सेंटर्स हैं, बड़ा, बहुत बड़ा। और क्यों? क्योंकि ये बंदा गुस्से में है। और उसका तिब्बत में जो बुद्धिस्ट मंक के जो ड्रेस, जो उनका ड्रेस, उसमें QR कोड लगा हुआ होता है। वो QR कोड से सैटेलाइट से पिकअप करते हैं सिग्नल कि ये बंदा क्या बोल रहा है, नेगेटिव टीचिंग कर रहे हैं या पॉजिटिव टीचिंग कर रहे हैं, दलाई लामा को मदद कर रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी को मदद कर रहे हैं। ये मंक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर है। Monk is a Communist Party member. My God. And this will be connected to the satellite connection. Every house has a QR code. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप इस कमरे में आ गए, कोई आपको कोई रोका नहीं है और या कोई निगराना नहीं किया, सर्विलेंस नहीं हुई। चीन में ये सारा है। तो with that you don't have a large scale protest, but you'll also be surprised, China is second or third largest in terms of global protests. आप अगर आज कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स अगर तीसरा पेज में आए, देयर इज ए एंगेजमेंट्स कॉलम। आज IIC में ये मीटिंग हो रहा है, या स्वामी जो भी है वो भाषण दे रहे हैं किसी मंदिर में, या इस थिएटर में ये मूवी हो रहा है, या वहाँ पे अंबेडकर स्टेडियम में ये फंक्शन हो रहा है कुछ। आपको ये सारा मिलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, जो भी है न्यूज़पेपर, तीसरा पेज, चौथा पेज में होता है ये। प्लीज पे अटेंशन टू दिस बिकॉज आई ऑल्सो सी मोस्ट ऑफ द टाइम। चीन में आपको हैरान हो जाएंगे, उसमें एंगेजमेंट कॉलम में आज मेयर के ऑफिस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन होगी, पेंशन नहीं दिया हमें इस महीने में, तो डेमोन्स्ट्रेशन में प्लीज पार्टिसिपेट। अच्छा। बिजली का जो सब्सिडीज निकाल दिया, और इसके खिलाफ हम, बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके खिलाफ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। आपने भारत के अखबार में कहीं देखा है? पत्रकार जाते हैं जब जुलूस शुरू होते हैं, क्योंकि उसको कैप्चर करना चाहते हैं। Nobody says please come and participate in this demonstration in India. But what about the state, sir? स्टेट के खिलाफ तो डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ कोई नहीं होता। स्टेट के खिलाफ ही ये सारा मैं जो कह रहा हूँ। मेयर इज द स्टेट, डायरेक्ट एक्शन। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिल्ली में शायद ट्रांसको वगैरह है, दैट इज द स्टेट। Who is the state? This is the state. They are the ones who are selling you the electricity. These are the ones who are cutting down your pensions, your subsidies. आपका पानी का वो बिजली ज़्यादा आ गया, या एजुकेशनल ट्यूशन फी बढ़ गया, या हेल्थ रिलेटेड उसमें आपको इलाज कर नहीं पा रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें प्राइवेटाइज कर दिया। आम आदमी के लिए कोई अस्पताल अभी नहीं है। तो दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर दिस। Egypt had the highest number of protests during Tahrir Square, जो जास्मिन रेवोल्यूशन हुई। The next is India. हमारा हर दिन कोई ना कहीं जुलूस निकलेगा। आप JNU आइए, अगर कोई जुलूस नहीं देखना चाहते हैं तो हर दिन यहाँ पे जुलूस होता है।
we are famous for that. Okay. Sir, So I just want to wind up this. So China has the second or third largest number of protests globally. Lekin these are not challenging the Communist Party. They are challenging the electricity distribution person. yeah, that's what I am asking for. क्योंकि पार्टी और स्टेट Hmm. वो उन्होंने फिक्शन एक बनाया कि आप बिजली का डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? प्रॉब्लम हम तो डिसीजन ये नहीं लिया, उन्होंने लिया बिजली का बढ़ाने के लिए। उन्होंने लिया ये डिसीजन, हमने नहीं लिया। हमारे खिलाफ आप क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? अगर हमारे ऊपर अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो आपको अंदर डाल देंगे। ओके सर, आप भी कभी गुस्से से निकले वहाँ पे? जब आप जाते हो, और मेजर डिफरेंस क्या देखते हो आप हिंदुस्तान और चाइना में? अभी कितने साल हमारे को लगेंगे उस डेवलपमेंट को अचीव करने में? पहली चीज़, हमारे पास फ्रीडम है। आप किसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। चीन में फ्रीडम नहीं है। चीन में वैसे यू कैन आर्ग्यू, यू कैन क्रिटिसाइज, आप लिख नहीं सकते हैं। सेंसरशिप इज़ व्हेन यू राइट। तो आपके जैसे पत्रकार के उसमें बहुत नुकसान होगा। अच्छा अच्छा। द फर्स्ट थिंग इज़ टू कैप्चर द जर्नलिस्ट। जब ये महामारी चल रही थी, 3 पत्रकार विजिल ब्लोअर्स बने और सभी को अलर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वायरस है और इनका कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने एक्चुअली दे आर वेरी पब्लिक सेंटर्ड। दे एक्चुअली डूइंग ए पब्लिक गुड बाय टेलिंग एवरीबॉडी दैट प्लीज डोंट गो दैट साइड, many people there are infected and it is because of ABCD reasons. तो ये 3 पत्रकार को उन्होंने अंदर डाल दिया। With that actually the virus spread further. Because we are discussing this, please refer to in Google Fang Fang. FANG. Okay. She is a journalist in Wuhan. तो every day she will survey and ये अंग्रेजी में भी छपा हुआ है अभी, bilingual. So please read this. During those days, 2019, 2020, she recorded every day she would go outside. दुकान में जाएं, दुकान में she saw everybody with virus. क्या करें उसका, क्या solution, क्या हल निकालें? These are 2019, late 2019 October. That was the time. So there were many whistleblowers. उन सबको उन्होंने they chased away all these journalists and put them in jail. Okay. So the difference is we have freedom, they have no freedom. That's one main difference. The second is, of course, there is development. सड़क अच्छा बना हुआ है, एयर कंडीशनड कमरे हैं, लेकिन यू आर पेइंग फॉर ऑल दिस। Exactly. And there is huge taxes, tolls everywhere. When we were going by the highway, there are so many toll gates. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गुड़गांव के उन्होंने एक बंद करवा दिया था, क्योंकि आपको 2-3 टोल गेट्स एक ही शहर में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व करके उसको बंद कर दिया। लेकिन चीन में हम हंसते हुए कहते थे कि ये हाईवे रॉबरी। वी कीप गिविंग मनी लाइक दिस फॉर द टोल। 10-15 toll gates in every road. Oh my God. That's tragic. Yeah, this is very costly. Okay. आपको जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे चीन में। ये बड़ा खतरनाक है सर। Okay sir, then. Thank you so much.
I think we took more time. It's good, sir.